اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے افضل ایام الدنیا، سال کے بہترین ایام اور بہترین عشرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یقیناً یہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ والے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ تو اللہ تعالی بار بار ہمیں ایسے مواقع، ایسی گھڑیاں عطا فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، کیونکہ حقیقی کامیابی اور حقیقی کامرانی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے بخشش اور معافی مل جائے، کیونکہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ان دنوں میں جو بہترین کام کرنے والے ہیں وہ گزشتہ جمعے تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ سب سے پہلا کام یہی تھا کہ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لیں اور اللہ سے یہ توفیق مانگ لیں کہ اللہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے نوافل ادا کرنے ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور صدقات و خیرات وہ بھی بڑھ چڑھ کے کرنے ہیں۔ یہ تو ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، اور 10ویں تاریخ جسے یوم النحر کہا گیا ہے، قربانی کا دن کہا گیا ہے، اس دن کا سب سے عظیم ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خون بہانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق وضاحت ارشاد فرما دی، سورہ حج آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگو اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا، یہ گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچ رہا۔ جب ہم جانور قربان کرتے ہیں ہمارے سامنے اس کا خون بہتا ہے اور اس کا گوشت بھی ہمارے پاس ہی رہتا ہے، اللہ تک تو نہیں جا رہا۔ تو اللہ تک کیا جا رہا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں خشیت الہی جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اللہ کی ہیبت پیدا ہو جائے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہا کہ دیکھو اسی طرح میں نے یہ زمین و آسمان اور سارا کچھ تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ہر چیز ہے انسان تمہارے ماتحت کر دی ہے، تمہارے تابع کر دی ہے۔ اتنے طاقتور جانور کہ اگر انہیں اللہ ہمارے ماتحت نہ کرے تو شاید ہم عید قربان پہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر سکیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمارے تابع کیا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے 10 تاریخ کو ہم انہی جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ جس طرح اتنا بڑا طاقتور جانور اللہ تیری راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ اگر تو ہماری جان مانگے تو ہم بھی حاضر ہیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو ہدایت دی ہے
उस पे हमने अल्लाह की किबरियाई बयान करनी है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और फरमाया कि एहसान करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब देखें, यहाँ जानवर कुर्बान करना, हम किसी पे एहसान कर रहे हैं? नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है। अल्लाह की तरफ से हमें एक मौका दिया गया है जिससे हम अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर सकते हैं। कुर्बानी लफ्ज़ जो है ये कुर्ब से निकला है। कुर्ब का मतलब क्या होता है? नज़दीकी। यानी इस अमल के जरिए हम अल्लाह की नज़दीकी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के करीब जा सकते हैं। जैसा कि मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, मा यतक़र्रबु बिही इलल्लाहि तआला मिन ज़बीहतिन व गैरिहा, ये कुर्बानी जो लफ्ज़ है ये किस लफ्ज़ से बना है? कुर्ब से। यानी इंसान जब भी किसी चीज़ की भी कुर्बानी देता है, जब अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है, जब अपनी आरज़ुओं की कुर्बानी देता है, तो उसका मकसद क्या है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह की नज़दीकी मिले। तो फरमाया यहाँ कुर्बानी का मकसद भी यही है। जब हम जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक मकसद है कि मेरा अल्लाह मेरे ऊपर राज़ी हो जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि अहले मोहल्ला के अंदर मेरा नाम पैदा हो, लोगों में वाह वाह बल्ले बल्ले हो, मेरे नाम के चर्चे हों, लोग वाह जी वाह कितना महंगा जानवर लेके आया, 20 लाख का एक ही जानवर ले आया, 30 लाख का जानवर ले आया, या इसने सबसे ज्यादा 15, 20, 30 कुर्बानियां कर दी हैं। अगर मकसद भाइयों ये है तो इसका मतलब ये है कि कुर्बानी का जो मकसद था अल्लाह का कुर्ब पाना, अल्लाह के करीब जाना, तो गोया कि मैं अल्लाह के करीब नहीं जा रहा, मैं तो लोगों के करीब जा रहा हूँ। अमा यतक़र्रबु बिही इलल्लाह, जो भी अमल मुझे अल्लाह के करीब करेगा उसे कुर्बानी कहते हैं, उसे कुर्ब कहते हैं, अल्लाह की नज़दीकी कहते हैं। तो लिहाजा ये कितना अजीम अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला उस कुर्बानी के जानवर के जिस्म पे जितने बाल हैं उतने सालों के हमारे अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे, और वो कुर्बानी का जानवर हमारे लिए जन्नत का जो है पैगाम बन जाता है, जन्नत की खुशखबरी बन जाती है। हालांकि उसका खून हमारे पास, उसका गोश्त हमारे पास, सारा कुछ हमारे पास है, लेकिन अल्लाह तक क्या जा रहा था? हमारी नीयतें जा रही थी, हमारा इखलास जा रहा था, हमारा तकवा जा रहा था, क्योंकि अल्लाह के पास सिर्फ तकवा जा रहा है, बाकी सारा कुछ तो भाइयों मेरे और आपके पास ही है। तो हमने आज के इस खुतबा जुमा में कुरान और सुन्नत से यही चीज़ सीखने की कोशिश करनी है कि मकसद कुर्बानी क्या है। इसका मकसद कतन ये नहीं है कि अहले मोहल्ला के ऊपर रोब डाला जाए, उनके अंदर नाम पैदा किया जाए, शोहरत हासिल की जाए। कहा जाता है वकार, अगर इंसान अल्लाह की रज़ा को छोड़ के लोगों की रज़ा को सामने रखते हुए कोई भी काम करता है, वो अमल छोटा है या बड़ा है, भाइयों वो हमें ज़रिया निजात नहीं दे सकता, वो अल्लाह की बारगाह से हमें रहमतें नहीं दिलवा सकता, अल्लाह की खुशनुदी नहीं दिलवा सकता। हदीस मुबारक है कि वो बदनसीब लोग जिनके जरिए सबसे पहले जहन्नम को भड़काया जाएगा, हालांकि वो जहन्नम जिसे कई सौ साल तक भड़काया गया है, जिसकी गहराई कितनी ज्यादा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठे हैं तो अचानक से किसी बहुत बड़ी और भारी चीज से गिरने की आवाज आई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, क्या मेरे सहाबा जानते हो ये किस चीज़ गिरने की आवाज़ आई है? सहाबा बड़े अदब एहतराम से कहते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है, या अल्लाह का महबूब पैगंबर जानता है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब के जरिए ही हमें सारी चीज़ों का इल्म देता है। कहा आज से कई सौ साल पहले अल्लाह ने जहन्नम के ऊपर से एक पत्थर को गिराया था जो आज उसकी तह के अंदर जाके लगा है, ये उसके गिरने की आवाज़। इतनी गहरी जन्नत जहन्नम, इतनी बड़ी जहन्नम जिसके अंगारे जो है, जिसकी हैबत जो है, जहन्नम की वादियां खुद उसे पनाह मांग रही हैं। नबी करीम ने सलाम जो इमामुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं, नबियों के सरदार हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, सारी कायनात के लिए रहनुमा हैं, तो वो भी जाते जी वकार फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से महफूज कर दे। इसका मतलब क्या है कि भाइयों ये दुआ कोई मामूली नहीं है, ये बड़ी अहम दुआ है। नबी करीम अलैहि सलाम नमाज के अंदर भी जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, नमाज के बाद भी अल्लाह के हुजूर यही इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार,
अल्लाह मुझे आग से महफूज कर। इसका मतलब क्या है कि भाइयों, जिनको अल्लाह ने जहन्नम से बचा दिया और अपनी रहमत जन्नत में दाखिल कर दिया, वो सबसे बड़े कामयाब हैं। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमा रहे, जिनको मैंने जहन्नम से बचा लिया, जिनको मैंने जन्नत में दाखिल कर दिया, फ़क़द फ़ाज़, बस वो ही हैं कामयाब और कामरान होने वाले। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के बदबख्त और बदनसीब जिनके जरिए जहन्नम को और ज्यादा भड़काया जाएगा, कौन है भाइयों? जिनके पास बज़ाहिर बड़ी बड़ी नेकियां हैं, जो नेकियां उसने अल्लाह की रजा के लिए नहीं की थी, जिन नेकियों को करते वक्त उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। मकसद क्या था? अल्लाह की बारगाह में वो बंदा पेश हुआ, अल्लाह पूछते हैं, हाँ बंदे बता, आज तेरे पास कौन सा ऐसा अमल है जो तुझे मेरे कहर से, मेरी पकड़ से बचा सकता है? कहता है, अल्लाह तूने एक ही जान दी थी, तेरी राह में कुर्बान कर दी ताकि तू राजी हो जाए। शहीद अल्लाह के दरबार में पेश है, अदालत लगी हुई है, ऐसा लोगों के सामने अल्लाह सवाल कर रहे हैं, अब बंदे तूने क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है? कहता है, अल्लाह तूने एक जान दी थी, तेरी राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह फरमाते हैं, कज़्ज़बता, बंदे तू तो झूठ बोल रहा है, तूने जान जरूर दी है, लेकिन तेरी नीयत क्या थी, तेरा मकसद क्या था? ताकि तेरे नाम के बैनर लगे, तेरे नाम के चर्चे हों, तेरे नाम के लिए जो है वाह वाह बल्ले बल्ले की जाए, लोग के बड़ा दलेर, बड़ा बहादुर, बड़ा शुजा था। लिहाजा तेरे मकसद के मुताबिक मैंने तेरे नाम के चर्चे करवा दिए, तेरी शोहरत करवा दी, तुझे शोहरत हासिल हो गई, लोगों में तेरे नाम के डंके बजे। अगर यही अमल तेरा अल्लाह की रजा के लिए होता तो आज तुझे नबियों का साथ अता मिलना था, नबियों की कॉलोनी में तुझे पड़ोस मिलना था। लेकिन तेरा मकसद क्या था? अल्लाह को राजी नहीं करना, अल्लाह का कुर्ब पाना मकसद नहीं था, अल्लाह के करीब जाना मकसद नहीं था, रहमत इलाही को समेटना मकसद नहीं था। मकसद क्या था? सिर्फ लोग राजी हों। रिश्तों को अल्लाह हुक्म देंगे कि भी इस बदबख्त को पकड़ो, इसके पाँव में जंजीरें डालो और मुंह के बाल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। भाइयों, नेकी बज़ाहिर नेकी है, लेकिन जहन्नम में गिरने का इंसान सबब बन रहा है।